Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In our video solution series Road to XLRI, today in this video we are going to take a look at a decision making set from XAT 2022. ठीक है? All other previous year questions have been uploaded in the playlist with the same name as Road to XLRI. Please make sure that you go through those in addition to this one. Chalo, without any delay, let's dive in, see what the passage is all about. I have labeled this decision making set as Raghuveer's SUV. And for those who might be knowledgeable, I hope that this image is more than enough to convey what this set could be about. Okay, so chalo, without any delay, let's dive in. As usual, I recommend that you pause the video here, use the timestamps in the description box to go to the 3 individual questions for this set. काफी straightforward सा set है, so I hope that you have done this already. And now let's see what it is about. ठीक है. कमिंग टू द मेन डेटा फर्स्ट, बात की गई एक डॉक्टर की, मिस्टर रघुवीर. ओके, इन्होंने बहुत मेहनत की कमाई से यार एक उनकी बड़ी प्यारी एक एसयूवी खरीदी है. एसयूवी इज अ गाड़ी लाइक महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा हैरियर, उस टाइप की गाड़ी को एसयूवी बोलेंगे. बट ही बॉट इट अबाउट 10 years ago. ठीक है, एक काफी सारा टाइम हो चुका है. ओके, एंड वेयर डज ही प्रैक्टिस? ही लिव्स इन अ टियर 3 सिटी. ठीक है, टियर 1 सिटी कुड बी लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, इस तरीके से. टियर 2 सिटीज कुड बी इंदौर, अहमदाबाद, ठीक है, पुणे, इस तरह से. तो टियर 3 सिटी काफी छोटी जगह से है. ओके, ही ओन्स एन इंपोर्टेड एसयूवी, सो शोज कि भाई दिस गाय possibly passionate about cars and all, and he bought it 10 years ago after doing a lot of savings for 5 years. ठीक है, dedicated passionate बंदे हैं भाई. ठीक है, initially used to take it for long rides. ओके, लेकिन पिछले 6-7 साल से he uses only for going to his clinic. कुछ तो हो गया यार, अचानक इनका शायद मूड ऑफ हो गया है. डजंट वांट टू गो ऑन अ लॉन्ग राइड नाउ. मे बी हिज वाइफ बिट ऑफ हिज ईयर पॉसिबली. ओके, ऑल राइट. तो इन्होंने 3-4 साल यूज किया है इस एसयूवी को फॉर लॉन्ग राइड, और अब तो केवल बस 10 मिनट दूर इनका क्लिनिक है, वहां पे जाने के लिए इतनी बड़ी सारी गाड़ी यूज करते हैं. ठीक है, दिस व्हीकल हैज बीन हिज प्राउड पोजेशन, बट इट डिमांड हाई मेंटेनेंस, एंड डूड बीइंग पैशनेट अबाउट कार्स, ही डज दिस. द एसयूवी इज डीजल गजलिंग. ओके, मतलब इसका माइलेज बहुत कम है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट माइलेज, आप लोगों ने मारुति सुजुकी का आई होप एक एड देखा होगा जो आज से कुछ साल पहले रन हुआ था, where everybody is taking a look at random things and at the end they ask this one question, कितना देती है. So there is this one guy who was demonstrating the powers of a rocket जो एक spaceship को launch करेगा space में and all, and that customer asks him कि कितना देती है. तो कहीं ना कहीं the ad was focused on कि हमारी गाड़ियाँ माइलेज इतना देती है that people end up becoming obsessed with it. So that is not the case here. Actually the SUV is a diesel guzzler, hardly any mileage. ठीक है. Unfortunately, it also does not comply with the new emission norms which are being introduced. कहाँ पर? लेकिन एक बहुत अच्छा specific situation दिया है हमें, new emission norms कि भाई गाड़ी ने इतना ही pollution करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. So in India we have Bharat stage 1, 2, 3, 4. Today when I'm making this video we are at stage 6 right now. Okay. Euro में it is Euro 1, 2, 3, 4 इस तरीके से. So now new norms are being implemented, they are being introduced, my bad, not implemented, just introduced, लेकिन not in the doctor का city, not in Mr. Raghuvar का city, in tier 1 and tier 2. ठीक है, but अखबारों में खबर भी छपी है that this norms might be introduced in tier 3 cities as well. Okay, so this news has worried Raghuveer. बिल्कुल होना ही चाहिए. इट इज पॉसिबल दैट दिस एसयूवी व्हिच इज प्रीटी ओल्ड, 10 साल हो चुके हैं, तो इट पॉल्यूट्स अ लॉट, आल्सो गिवन टू अस दैट इट इज डीजल गजलिंग एंड सो ऑन. तो थोड़ी चिंता तो होना ही है व्हेन यू आर सो पैशनेट अबाउट योर व्हीकल एंड यू बॉट इट आफ्टर अ लॉट ऑफ सेविंग्स. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. Raghuveer is afraid that once the new emission norms are rolled out, okay, he might not be able to use his SUV anymore. ठीक है, इनको चिंता हो रही है यार, सरकार बोलेंगे कि चलो रख दो, ये बेच दो, या फिर अपने गराज में ही बंद रखो, चलानी नहीं ऐसी गाड़ियां. इनको बेचारे को टेंशन आ गया. क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, सिचुएशन अगर सही हो जाए तो ये मिस्टर रघुवीर का ना टेंशन खत्म कर देंगे. खत्म या फिर कुछ टाइम के लिए दबा के रख देंगे कि यार डूड आज इतना लोड मत ले, ये लोड जब आएगी ये बात तब देखेंगे, कुछ टाइम तो आपको चिंता करने की बात है नहीं. ठीक है, सो विच ऑप्शन विल बेस्ट डू दैट? लेट्स सी. ऑप्शन ए, his mechanic, okay, garage वाला, assures him that the new norms will not be introduced anytime soon. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है. This is equivalent to me saying अरे लोड मत लो, इस साल की जैट इजी आने वाली है, अब बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अगले साल का कैट भी बहुत टफ रहेगा इस साल जैसा. What nonsense. Just because I can teach some subject doesn't give me any powers to predict what will happen, right?
So similarly, just because the mechanic can repair the car, can identify what a problem might be in it, doesn't give him any kind of superpower to engage in guesswork or engage in speculation about government policies. ठीक है? So this is complete bullshit. Okay, out. B. His lawyer friends in his city recently bought non-compliant SUV from tier 2 cities. Whoa. This is interesting. Oh. कैसे कैसे टीयर 2 सिटीज में तो यार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, यहाँ पे दिया जा चुका है, दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस न्यू एमिशन नॉर्म्स एंड स्टिल दीज गाइज आर बाइंग न्यू एसयूवीज. थॉट प्रोवोकिंग. ठीक है, ओके, सो विल कीप दिस ऑन होल्ड, कांट रिजेक्ट इट येट. सी. हिज सिटी हैज मेनी अदर एसयूवीज व्हिच आर एज ओल्ड एज हिज. तो सब लोगों को टेंशन है. ओके, रघुवीर के पास में खुद की गाड़ी है, ऐसी गाड़ी अगर 10 लोगों के और के पास में, तो उन 10-11 लोगों को टेंशन लेना चाहिए, अरे यार कल जाके ऐसे नॉर्म्स आ गए तो हम क्या करेंगे. सो दिस इज नॉट गोइंग टू पुट हिज वरीज एट रेस्ट राइट नाउ. गोल क्या है हमारा कि मिस्टर रघुवीर के टेंशन को आप खत्म करो फिलहाल के लिए, टेम्परेरीली एटलीस्ट, इफ नॉट परमानेंटली. तो ऑप्शन सी इज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम पुट डाउन हिज वरीज. इट विल बी लाइक कि अच्छा, आई एम वरिंग along with 10 others. Okay. D. As a sought after doctor, all the law enforcement officials are his patient. Whoa, this is playing fast and loose with ethics. कि लॉ एनफोर्समेंट वाला आपका क्लाइंट है, आपको बिजनेस देता है, आपका पेशेंट है, डजंट गिव यू एनी पावर टू ट्विस्ट द लॉ. ओके, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी इज हिंटिंग एट करिंग फेवर फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स व्हेन द डे कम्स. बिल्कुल नहीं, बॉर्डरिंग ऑन स्ट्रॉन्ग अनएथिकल लाइंस. किया नहीं है बट विचार तो चल रहा है. ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना एग्जाम में प्लीज. ओके, एथिकल वाले ही ऑप्शंस रहने चाहिए, अनएथिकल चीजें नहीं चलती. ओके, ऑप्शन ई. नॉन कंप्लायंट एसयूवीज आर स्टिल प्लाइंग इन टीयर 2 सिटीज. ठीक है, तो ऑप्शन बी और ई जो है दोनों वर्थ कंसिडरिंग है. व्हाई? बिकॉज बोथ आर टॉकिंग अबाउट टीयर 2 सिटीज. ठीक है जी, दे आर टॉकिंग अबाउट एसयूवीज. यस, एसयूवीज आल्सो अ फोकस ऑफ एरिया ऑफ कंसर्न है. तो खास बात क्या है इन दोनों में, डिफरेंस क्या है बी और ई में? द ओनली डिफरेंस इज कि भाई ऑप्शन ई में इट शोज दैट एसयूवीज जो ऑलरेडी खरीदी जा चुकी है, दे आर रनिंग, मे बी दे आर ओल्ड, साल 2 साल 5 साल 10 साल वॉट एवर. एंड इन ऑप्शन बी वी हैव लॉयर गाइज जो न्यू खरीद रहे हैं ऐसी गाड़ियां. सो ऑप्शन बी एंड ई बोथ हिंट एट व्हाट? दे हिंट एट द सिचुएशन कि भले ही नॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, दे हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड रिगरसली. ठीक है, ये बी और ई दोनों से हम टेक अवे कर सकते हैं. देन हाउ डू वी फिगर आउट कि दो में से सिलेक्ट कौन सा करें अभी एज द बेस्ट ऑप्शन, जो रघुवीर की चिंता बहुत कम करेगा? दोनों ऑप्शन कम कर सकते हैं, बिकॉज ही कैन लुक एट अ सिटी लाइक पुणे एंड से अरे वाह, यहाँ पे तो ये गाड़ियां चल रही है इतनी बड़ी बड़ी, मैं तो फिर भी बहुत छोटी सिटी से आता हूँ. देखेंगे तब के तब, बड़ी सिटी में पकड़े नहीं जा रहे हैं लोग. तो यस, दिस इज गुड. बोथ बी एंड ई ऑप्शंस आर गुड. तो अभी सिलेक्ट कौन सा करें? तो सिलेक्ट ऐसे केस में आपको ऑप्शन बी करना चाहिए. व्हाई सो? बिकॉज कोई रैंडम टॉम डिक एंड हैरी नहीं खरीद रहे हैं ये गाड़ी. लॉयर फ्रेंड्स आर बाइंग, लॉयर्स आर एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ. तो अगर ये लोग न्यू गाड़ियां खरीद रहे हैं विच आर नॉन कंप्लायंट विद दिस एमिशन नॉर्म्स, इसका मतलब दो में से एक ही चीज हो सकती है कि द नॉर्म्स आर नॉट गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड. ओके, एंड दे आर वेरी श्योर अबाउट इट. The government has simply introduced them, but it is a paper tiger type situation, not going to work out in real life. या फिर these guys have found a loophole in the law. It is possible कि भले ही उस न्यू नॉर्म्स के अंदर लिखा हो कि अरे ये गाड़ियां नहीं चलेगी नॉन कंप्लायंट, बट मे बी देर इज अ वेरी पेटी फाइन इन देयर, या फिर मे बी हार्डली एनी एक्शन विल बी टेकन. होंगे कुछ ना कुछ वर्क अराउंड होगा, तभी तो जाके लॉयर लोग खरीद रहे हैं ऐसी गाड़ी. अब वो पागल तो नहीं होंगे, एक तो टीयर 2 सिटीज के प्लस लॉयर्स है और न्यू गाड़ी पे इतना सारा खर्चा कर रहे हैं वो लोग. तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव बेसिस पे ऑफ कोर्स द लॉयर फ्रेंड्स आर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जांपल, बट एनीवे हु वांट्स टू बी अ गुड बॉय हियर, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो ऑप्शन बी एक्चुअली बिकम्स द आंसर. And when I said that nobody wants to be a good boy here, that doesn't mean that आप option D को भी select कर जाओ. ठीक है, there is a fine line between engaging in unethical stuff and being a good boy and a bad boy. ठीक है, तो थोड़ा सा rebel रहना है but unethical कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो because of that reason option B is very good. You look at people who are aware of the law and still engaging in stuff. तो कहीं ना कहीं एक तो law weak है, नहीं तो उसमें loophole मिल चुका है.
ओके और ऐसा एक इंसान नहीं कर रहा है, मल्टीपल लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया जा चुका है फ्रेंड्स इन द सिटी। ओके तो ऑप्शन ई सिंपली पॉइंट्स टू द लॉ नॉट येट इंप्लीमेंटेड इन टीयर 2 सिटी। ऑप्शन बी पॉइंट्स आउट कि लॉ तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और शायद आने वाले फ्यूचर में भी शायद ना ही हो। तो स्ट्रेंथ बेसिस के ऊपर ऑप्शन बी विंस द गेम। ओके सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस सिनेरियो, दिस केस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके अब आ गई है मिस्टर रघुवीर की बेटी पिक्चर में, ठीक है, आन्या। ओके शी वर्क्स इन अ मेट्रो सिटी टीयर 1 टीयर 2, ठीक है, एंड शी इज कंसर्न्ड अबाउट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। यार पापा इतनी बड़ी गाड़ी यूज कर रहे हैं, कितना पोल्यूशन होता होगा, नहीं होना चाहिए, वी शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम यार पापा है, उनके ऊपर दादागिरी तो नहीं कर सकते, और दिख रहा है कि पापा को बहुत अटैचमेंट है यार गाड़ी से। सो क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल हेल्प आन्या टू डिसवेड रघुवीर। डिसवेड इज द अपोजिट ऑफ परसुएड, ठीक है। यार अरे प्लीज प्लीज यूज मत करो आपके एसयूवी, कम से कम यूज करो, और गोल को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लेट मी अंडरलाइन विद द बेटर कलर। फ्रॉम यूजिंग इज एसयूवी, ओके, गाड़ी नहीं यूज करो पापा डेली बेसिस पे, ठीक है। ओकेजनली यू माइट यूज, लेकिन रोज जा रहे हैं ना पापा तो गाड़ी से क्लिनिक में, तो रोज यूज ना हो, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। यार sorry for the digression, but when I'm making this video the movie Animal has become a massive hit। तो कहीं भी पापा पापा बोला तो उसका वो ट्रेलर का डायलॉग याद आता है, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। ओके इमेजिन आनिया डूइंग दैट, पापा पापा प्लीज डोंट ड्राइव द कार, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। ओके ऑप्शन ए, request Raghuveer to use public transport for his daily commute and use the SUV sparingly। practically okay, theoretically very good option, लेकिन डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव शॉक फॉर रघुवीर? क्योंकि हमें दिया है यहाँ पे कि ये पिछले 6-7 साल से ही इज यूजिंग इट डेली टू गो टू हिज क्लिनिक। नाउ समबडी हु हैज पुट इन अ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ मनी इनटू बाइंग समथिंग, हैज बीन यूजिंग इट फॉर 6-7 years, और फिर आप उनको बोल रहे हैं नहीं नहीं कल से ना बस ऑटो से जाना, आपने नहीं जाना है, कार से नहीं जाना है। डैड विल बी लाइक डूड, एम आई योर फादर और आर यू माई फादर? ओके तो ऑप्शन ए इज वेरी वेरी वीक, डजंट क्वाइट हेल्प आन्या, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको। ओके फेयरली वीक। बी, आस्क हिज मैकेनिक, ओके, आन्या विल आस्क डैड के मैकेनिक को टू एक्सप्लोर इफ द एसयूवी कैन बी रेट्रोफिटेड विद अ सीएनजी किट। एक्चुअली आई लाइक दिस ऑप्शन अ लॉट बिकॉज इट ट्राइज टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट डीजल व्हीकल के सामने एक सीएनजी व्हीकल इज फार लेस पोल्यूटिंग, ठीक है। सेकेंडली अगर ऑप्शन बी सही हो जाता है, इफ इट इज पॉसिबल, तो एक तीर दो निशान टाइप कि पोल्यूशन कम हो जाएगा विच आन्या वांट्स, एंड डैड विल कंटिन्यू टू यूज द एसयूवी विच द फादर वांट्स, एनी विच वे। तो फॉर मी बी इज वेरी गुड, ठीक है। नॉनदलेस लेट्स गो अहेड, लेट्स गो, क्या हो सकता है। बट ऑप्शन बी में एक बात देखो, जो क्वेश्चन के अंदर स्टेट किया गया है ना गोल, वो पूरा नहीं हो रहा है। और क्या गोल था कि शी डजंट वांट हर डैड टू यूज द एसयूवी ऑन अ डेली बेसिस। समझ लो अगर बी ऑप्शन ट्रू निकल जाए कि हाँ जी गाड़ी को हम सीएनजी किट पे चला सकते हैं, तो गाड़ी तो यूज हो रही है ना रोज के बेसिस पे। तो अगर आप इफ यू आर समबडी हु फॉलोज द लेटर डाउन टू द लास्ट टी एंड डॉटेड आई, तो फिर भाई ये दिक्कत है यहाँ पे कि नहीं करना है ना यूज, तो फिर तो नहीं करना है, फिर वो सीएनजी पे चले या पानी पे चले गाड़ी, नो 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 नहीं चलाना है। तो ऑन दैट बेसिस ऑप्शन बी फेल्स। तो ठीक है, लेट्स इवैल्यूएट व्हाट द अदर ऑप्शंस आर। थोड़ा सा टेंशन में तो डाल दिया है इस क्वेश्चन ने हमको। सी, टेक अवे रघुवीर एसयूवी टू मेट्रो सिटी, गिफ्ट हिम अ न्यू एसयूवी। भाई ये एनिमल का स्क्रिप्ट चल रहा है क्या यहाँ पे? बच्चे कब से इतने दादागिरी करने लगे? हॉरिबल ऑप्शन, ओके। और सॉल्व क्या हो रहा है भाई प्रॉब्लम? गिफ्ट हिम अ न्यू एसयूवी। ना आन्या का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना डैड का, डैड इज अटैच्ड टू दैट एसयूवी, हाउ कैन यू टेक इट अवे फ्रॉम हिम? और न्यू एसयूवी देकर कौन से तीर चला रहे हैं, ठीक है। ऑन सेकंड थॉट आन्या के पास पैसे कहां से आए इतने सारे, मैं तो वैसे सोचूंगा। ओके, गिफ्ट रघुवीर अ स्मॉल पेट्रोल कार, कन्विंस हिम टू सेल हिज एसयूवी, वेरी हार्श। माइट एज वेल आस्क हिम टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट थिंग, ठीक है। कि भाई छोटी गाड़ी चलाओ पापा, बहुत चला लिया 10 साल, बड़ी गाड़ी नॉट ओके, ठीक है। प्रिटी हार्श। ई, आस्क रघुवीर सेक्रेटरी टू फेरी हिम टू द क्लिनिक डेली इन हर कार एक्सेप्ट फॉर द वीकेंड्स। तो ठीक है, मतलब पापा यूज कर रहे हैं ये गाड़ी every day to go to the clinic, assuming that he's a doctor and he works 6 or 7 days a week even. So it's like 5 days he won't be using his SUV, 1 or 2 days he might be using it. तो
ये गोल तो फुलफिल हो गया ऑप्शन ई के अंदर कि डेली बेसिस पे एसयूवी को अवॉइड करो यूज करना, तो दैट इज फुलफिल्ड। बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो इस ऑप्शन को, तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी मैं ओके कि यार रघुवीर की सेक्रेटरी है वो, या है जो भी आदमी है लेडी है ओके इन हर कार, ठीक है, उनकी ड्राइवर नहीं है वो, ठीक है। और चलो एक बार का ये ऑप्शन फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते इफ इट इज गिवन दैट कि क्लिनिक यहां है, रघुवीर लिव्स हियर एंड द सेक्रेटरी लिव्स हियर, और जाने का रास्ता कुछ ऐसा है रोज का, तो फिर यार आप बोल सकते हो कि ठीक है द सेक्रेटरी एनीवे पासेस थ्रू दैट वे ऑन द वे टू द क्लिनिक, तो उठा लेंगे भाई, बॉस को भी ले चलेंगे गाड़ी में। बट व्हाट इफ इट टर्न्स आउट कि ना जी ना ऐसा नहीं है, सेक्रेटरी तो लिव्स इन सम अदर पार्ट ऑफ द टाउन, बूम यहाँ पे, तो डोंट यू थिंक ये दिस विल बी अ मैसिव हैसल फॉर हर पिकिंग हर बॉस फर्स्ट एंड देन गोइंग हियर। एक दो बार कर लेना ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर करने जाए तो यू आर नॉट आस्किंग द राइट पर्सन दिस जॉब, ठीक है, यू आर गिविंग द रॉन्ग जॉब टू द पर्सन। सेक्रेटरी है, ड्राइवर नहीं है, ठीक है। तो सेक्रेटरी इज जनरली फॉर कैरिंग आउट आपके बिजनेस के जो की एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो इंप्लीमेंट करना, वो कैरी आउट करना, वो काम होता है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी का जॉब इज नॉट टू फेरी यू अराउंड, especially on a trivial situation like this where your home is just 10 minutes away from the clinic. Not cool. But as luck would have it, this is actually the official answer. And why, I have absolutely no idea yaar, please. I was so devastated when reading this option because I was super quick to throw it out of the window. I was like, ये क्या बच्चों वाला solution है? Who will do this? ठीक है? But it turns out that possibly whoever made this question is blindly following this goal, no matter its practicality, no matter how pragmatic the option might be. क्या गोल है? रोज एसयूवी यूज नहीं होना चाहिए, तो पापा जाएंगे कैसे, बैठ जाओ किसी के और के कार में। अरे यार, फिर सामने वाले को कितना भी इनकन्वीनियंस हो, चलेगा कोई बात नहीं, चलेगा यार। इससे अच्छा तो फिर आई थॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुड बी अ बेटर ऑप्शन ना, आस्किंग डैड टू गो मे बी इन अ सिटी बस और मे बी यूजिंग एन ऑटो, दैट माइट बी अ बेटर केस ना। आप अपने सेक्रेटरी को कहीं से तो रैंडम से बुला रहे हो और पिकअप करने के लिए, एंड प्रैक्टिकली एवरीडे हो गया ना वो, 5 days a week, मे बी लेटिंग हर ऑफ ओनली फॉर अ डे और 2। तो फॉर दैट रीजन आई विल टेल यू अगेन, ऑप्शन ई इज द ऑफिशियल आंसर, बट आई एम नॉट एट ऑल इन अग्रीमेंट विद इट, ठीक है। मेरा इंक्लिनेशन ऑप्शन बी के तरफ जाता है, क्योंकि इवन दो इट डज नॉट फुलफिल द गोल ऑफ यूजिंग स्टॉपिंग द यूज ऑफ एसयूवी ऑन अ डेली बेसिस, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है ना। Dad continues to use it, he doesn't face any problems there, and आनिया का मोटिवेशन जो है कि यार पोल्यूशन, वो वाली चीज भी तो कम हो सकती है ना। तो B seems like a fair enough option to me, लेकिन अब ठीक है भाई, होता है, life happens, it sucks, okay। चल, with that let's go to the next option, question, my bad, ठीक है। Please read this if you haven't already, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं। The new emission norms are about to get implemented in tier 3 cities. हो, अच्छा ठीक है। और देखो इंट्रोड्यूस भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेड, सी द वर्ड चेंज, मतलब कि टियर 1 टियर 2 में इंट्रोड्यूस हो गया है, शायद वहां इंप्लीमेंट भी हो गया, और अब टियर 3 में भी इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। चलो, रघुवीर सिटी विल फॉलो सूट वेरी शॉर्टली, मे बी 1 month 2 months 3 months के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए मिस्टर रघुवीर स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ बाइंग एन ईवी, कूल गाय, ओके, डीजल से सीधा ईवी पे स्विच करेंगे। He lists 5 factors before him that will guide him on buying an electric car, ठीक है। 5 factors पढ़ेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन देखते हैं। Above listed factors have to be arranged in a decreasing order of influence, किस गोल के प्रति, to help रघुवीर buy an electric vehicle immediately, मतलब कहीं ना कहीं आपको रघुवीर को कन्विंस करना है कि सर प्लीज आपकी, डॉक्टर साहब आपकी एसयूवी बेच दो या उसको यूज करना बंद कर दो और न्यू गाड़ी जल्द से जल्द खरीद लाओ। तो आप पहले पोजीशन पे किसको रखेंगे? Best option, the option which is the best reflection, gives the best complement for EV use, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आप कौन सा रखेंगे, which points out the cons, the shortcomings of SUV, sorry my bad, cons of EV, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आप रखेंगे क्योंकि आपको तो उनको कन्विंस करना है ना जल्द से जल्द कि सर प्लीज छोड़ो ये और नई गाड़ी ईवी खरीदो जल्द से जल्द। So we'll try to see which option gives us what kind of info. Okay, alternative pointer P. EVs are within Raghuvir's budget, good. They can also cover his daily commute, which is very good. Not the long rides, ठीक है। So this
P is giving us 1 plus and 1 minus. Let's use a different color. Okay. This gives us 1 plus and 1 minus. कि ठीक है, बजट में भी है और डेली कवर कर लेगी आपका कमेंट. रादर देयर आर टू पॉजिटिव्स हियर एंड वन नेगेटिव थिंग कि यार लॉन्ग राइड पे नहीं जा पाओगे. बट व्हेन यू थिंक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट, एनीवे हमको दिया है कि वो अपनी गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं. ही यूजेस इट ओनली टू कम्यूट टू द क्लिनिक. तो ठीक है, बट फिर भी ठीक है ना एक शॉर्टकमिंग तो लिख दिया, उस तरीके से प्लॉट कर दिया. अब क्यू को देखेंगे. A new electric SUV in the market, again in the budget, nearly has the same look and feel of its present SUV. वाह जी वाह, क्या बात है. इसको तो हम +2 वाला रैंकिंग देंगे कि बजट में भी है, EV तो है ही है, प्लस इट इज एन SUV, इट्स नॉट अ रेगुलर प्लेन हैचबैक EV, इट्स एन SUV and it has the same look, feel, comfort of his regular car right now. So there are +2, +3 points over here. Very strong. This is very strong. ठीक है. Third R, EVs cannot be driven beyond 70 kmph. भाई बजट में है क्या, कितना यूज कर पाता हूँ, चलेगी हर रोज इतना, कुछ नहीं पता, बट 70 के नीचे ही चलाना पड़ेगा बॉस. तो -1 रेटिंग है इसको. शॉर्टकमिंग ही दे रहा है ना हमें ये. ठीक है, हेल्प तो कर नहीं रहा है बाय गिविंग अस एनी क्रूशियल डेटा लाइक ठीक है जी आप रोज चला पाओगे, लाइक सेंटेंस P इज गिविंग अस कि कवर हिज डेली कम्यूट पॉसिबल. तो R इज वेरी बैड एक्चुअली. हम R को प्रायोरिटी बहुत कम देंगे, उसको ज्यादा सामने नहीं आने देंगे. S, न्यू चार्जिंग स्टेशंस ऑन द मेन हाईवे कनेक्टिंग इस सिटी टू द क्लोजेस्ट मेट्रो सिटी मे कम अप इन अनदर ईयर. दिस इज ऑल्सो क्वाइट पुअर ना, कि आप ये गाड़ी तो शायद ज्यादा दूर ले जा ही नहीं सकते क्योंकि चार्जिंग लगती है ईवी को और चार्जिंग स्टेशन ही खड़े नहीं है. 1 साल लगेगा, वो भी शायद मे कम अप इन अनदर ईयर. तो वेरी मच लाइकली कि 1 साल से ज्यादा डिले भी हो सकता है. तो this is very poor, once again giving us the con, giving us the drawback of switching to an EV. कि आप अपनी सिटी में चला पाओ ज्यादा से ज्यादा, आपको करीब से करीब मेट्रो सिटी में भी जाना है तो शायद डाउट आ सकता है. ओके, लास्ट, the only shop selling EVs in his city is ready to trade in Raghuvir's SUV at a reasonable price. Wow, amazing. तो कहीं ना कहीं मिस्टर रघुवीर when he switches from his SUV to the EV will also stand to not lose completely. कुछ तो compensation उनको मिल रहा है. It's not like he has to completely scrap his SUV या have it stand alone in his garage. No, बिल्कुल अच्छी कीमत मिल रही है. So आप देख सकते हो कौन से चीज को हम सबसे ऊपर रखेंगे. पॉइंटर को Q को रख सकते हैं हम ऊपर सबसे, या फिर T को. Now you might have a doubt with me कि यार Q और T दोनों भी हाईलाइट्स दे रहे हैं हमें. both are highlighting the pros of getting an SUV. Accepted. रैंकिंग कैसे दे अभी. रघुवीर कैन बी मनी माइंडेड, तो ऐसा भी हो सकता है दैट ही इज यूजिंग, ही वांट्स टू प्रेफर टी, और इट इज पॉसिबल दैट ही इज इमोशनली मोर अटैच्ड, तो वो क्यू को ज्यादा फेवर करे, पैसों को उतना ना देखे. तो इन एनी केस क्यू और टी आपको चाहिए ना, कोई भी पोजीशन पे रखो. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट हम पी को बराबर बीचों बीच रखेंगे पोजीशन 3 पे, क्योंकि एज यू कैन सी इट गिव्स यू 1 प्लस एंड 1 माइनस. सेंटेंस P के सामने घटिया जो सेंटेंस है या कमजोर अल्टरनेटिव्स, कमजोर कन्विंसिंग पॉइंट्स जो है वो है सेंटेंस R और सेंटेंस S. P is exactly sort of in middle, giving you 1 advantage and 1 disadvantage, और Q और T advantage ही advantage बता रहे हैं. So which option reflects this? Only and only one option, that is P. It is the only one which has P in the middle. बाकी सब में आगे पीछे किया है. Q and T have been ranked at the start. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है इमोशनल अटैचमेंट को फुलफिल करने के लिए. देन कम्स द मनी एंगल वाला पार्ट कि अरे सर प्लीज कर लो एक्सचेंज, बहुत अच्छी कीमत मिल रही है. P में लॉन्ग राइड नहीं होगा सर, लेकिन डेली वाला एकदम अच्छे से हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है, बजट में भी है गाड़ी आपके. और फिर आते हैं S और R विच आर लाइक द हिडन ड्रॉबैक्स, जो कोई एकदम से नहीं बताएगा आपको. सो बिकॉज ऑफ दैट QT PSR इज द लेजिटिमेट आंसर, ऑफिशियल आंसर भी है, और हम लॉजिकली भी उसके ऊपर में पहुंच सकते हैं. ठीक है, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. इट वाज अ वेरी बेसिक सिंपल सा सेट. गेटिंग 3 on 3 नहीं, सॉरी माय बैड, 2 on 3 इज वेरी मच रीजनेबल. जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया वो आंसर कैसे बन सकता है, एंड आई विल नॉट सेल इट टू यू. ना मेरा आंसर ना ऑफिशियल आंसर. माय जॉब इज टू सिंपली हाईलाइट द रीजनिंग बिफोर यू. ठीक है, तो चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.
If you like the content, please hit the like, share and subscribe buttons ASAP. Use your superpower as the viewers, as the audience for this channel. Thanks a lot for your support till now, and I'll see you in the next video. Tata, bye bye, and take care.